Good morning students. As we have discussed yesterday about the lenses. In lenses we have discussed about the concave lens and the convex lens. If I draw, this is your convex lens, and if this is known as your concave lens. This is your convex lens and this is your concave lens. Understand? Which will be, this is your converging in the nature which we discussed yesterday, and this is your diverging in nature. Right, one will be your converging in nature and other will be your diverging in the nature. And we have discussed about the three rules. The three rules, what are there? The first one, if we draw like this is your optical center, this is f1, this is your c1, f2 and c2. A line which is parallel to principal axis, after refraction it will passes through the focus. That is your first rule. Okay. What is the second rule? Second rule we will discuss by the concave and the convex. दोनों में same जाएंगे. तो we are just discussing with the concave convex lens. This is optical center f1, c1, f2 and c2. A line which passes through the focus after refraction, it will becomes parallel to principal axis. That is your second rule. Understand? Third rule is saying that if a ray passes through the optical center, it will pass without refraction. So it will pass without the refraction. These are the three rules due to which we can show that how the image is formed by the concave mirror and lens and the convex lens. So we will discuss about the image formation by convex lens. So image formation by convex lens, right? Image formation by the convex lens. So first is that you just draw the diagram of your convex lens. This is your convex lens. Convex lens means thicker in between and tapering at both the ends. If we plot a line like this, principal axis, this is your optical center. The focus of this is your this one, and this is your FC2. This is your F1, and if you draw, this is your C2, like this. Okay, if you will draw like if the object is at infinity, if object is at infinity, what does it mean? Object is at infinity means the sun ray is coming from the sun, and the sun is at infinite distance from our lens. Then what type of the image is formed? The rays which are parallel to principal axis, like this. After striking, they will passes through the focus and will meet at this point. तो where these points will meet? At this point. तो image कहाँ बनेगी आपकी? Image is at focus, और focus भी कौन सा? F2. राइट, आपको मेंशन करना पड़ेगा ये F1 पे बन रही है या F2 पे बन रही है. तो आपकी इमेज कहाँ पे बनी? F2 पे. पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, real and inverted. So you have seen about the magnifying glass. When we keep the magnifying glass, the best example of convex lens is your magnifying glass. कि जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हो और उसमें से सनरेज को पास करते हो, द इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द पेपर, एंड व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द पेपर बर्न्स स्टार्ट्स बर्न आफ्टर सम टाइम. व्हाई इट इज ड्यू टू? बिकॉज ऑल द रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल मीट एट द पॉइंट एफ, एंड इट इंक्रीजेज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर, एंड पेपर स्टार्ट्स बर्निंग विद द स्मोक. तो ऑब्जेक्ट को जब हम इनफाइनाइट पे रखेंगे तो आपकी इमेज किस पे बनेगी? F2 पे. राइट. अब दूसरा, when the object is, if object is beyond C. अब जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देंगे? बियॉन्ड C रख देंगे. तो what type of the image will be there? Just like that. This is your convex mirror lens. This is your principal axis. This is your center of your optical center F1. This is C1. This is F2. And this is your C2. If the object is placed here, right? Object को यहाँ place किया beyond C, height A
B, M or N. This line parallel to principal axis. This line is parallel to principal axis. After refraction it will passes through the focus. किस में से पास होगी? फोकस में से पास होगी. अगली लाइन हम किस में से पास कर सकते हैं? जस्ट पासिस थ्रू द फोकस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम्स पैरेलल. तो ये देखो आपका ये बना इमेज. कौन सी इमेज बनी? A डैश B डैश, राइट. तो आपकी कहाँ इमेज बनी? A डैश पे और B डैश पे. ये क्या बनेगी आपकी? रियल, इन्वर्टेड, स्मॉलर साइज है तो डिमिनिश्ड, और कहाँ है? बिटवीन F2 एंड C2. F2 और C2 के बीच में बने जब आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? बियॉन्ड C रखा. अब थर्ड पोजीशन, ये तो हमारी थी फर्स्ट पोजीशन. दिस इज योर सेकेंड पोजीशन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड पोजीशन. थर्ड पोजीशन मीन्स इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at C. If the object is placed at C, so how will it will look like this. This is your optical center line. This is center of this mirror, sorry, lens, and this is your F1. This is your C1. Here this is your F2, and this is your C2. If a line parallel to this is your object A, B, you placed at the C. When you place the object at C, this is your line like this. You have to draw the arrows, and when you draw the arrow, after reflection it will passes through the focus, right? तो किस में से पास हो रही है? आपकी फोकस में से. दूसरी लाइन में आपको दिखाऊं, द ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी तो देन इट विल बी लाइक दिस, राइट, एंड इट विल मीट एट C. तो A डैश B डैश. You will see that the size of those objects are same. So what will you say that like this? You will like this, right? Draw the arrows here. This is your M and this is your N, right? If you will draw like this, so the image will be real, inverted, same size, and at C2. आपकी किसके ऊपर बनी? C2 के ऊपर. दिस इज योर थर्ड कंडीशन. फोर्थ कंडीशन इज दैट इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड C1. हम जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करें किसके बीच में? F1 और C1 के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया लाइक दिस. दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस. दिस इज ऑप्टिकल सेंटर F1, C1, F2, C2, राइट. अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? बिटवीन F एंड C लाइक दिस. इफ वी ड्रॉ लाइक दिस, दिस इज लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पासेस थ्रू द फोकस, राइट, लाइक दिस. दूसरी किस में से पास करते हैं? इसमें एरो के निशान जरूर लगाना, ऐसे एरो के निशान के रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे ही. सेकेंड, द रेज पैरेलल टू दिस एक्सिस विल बी हेयर एंड द इमेज विल बी फॉर्म्ड लाइक दिस. दिस इज A डैश B डैश A B, राइट. तो व्हाट विल यू सी? द इमेज ऑब्जेक्ट. आपको ऑब्जेक्ट की कैसे दिखाई दी? द इमेज इज रियल, inverted, magnified and formed beyond C2. समझ में? Yes, we will discuss again. If the object is placed at this C, means at the center of the curvature is there, and then what type of the image is there? Then one line is principal axis के क्या पैरेलल है? After reflection it will passes through the focus, and another line which is passing through the center of curvature. They will meet at the point that is known as your C2. So the image will be formed at C2 of the same size. So that what is the nature of the image? Real, inverted, same size, and it will form at this C2.
कब? जब हम ऑब्जेक्ट को किस पे रखेंगे? सी पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे. नेक्स्ट कंडीशन इज दैट इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड द एफ, देन व्हाट टाइप ऑफ द इमेज इज देयर कि जब सी और एफ के बीच में रखा, वन लाइन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, passes through the convex lens and after reflection passes through the focus, and one line passes optical center में से पास हो रही है. जैसे मैं सिंपली इसमें आई हैव नॉट मेक द एरोज, यू जस्ट ड्रॉ द एरोज लाइक दिस. आपने एरो किया और द इमेज विल बी फॉर्म बियॉन्ड सी. दिस इज ए डैश, बी डैश मीन्स हाइट ऑफ द इमेज इज देयर. इमेज इज रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड एंड फॉर्म बियॉन्ड C2. नेक्स्ट इज दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, यानी ऑब्जेक्ट को हम उसकी फोकल लेंथ पे रख दें, जहाँ पे आपकी फोकस है उसका फोकल. तो आपने ऑब्जेक्ट, ये क्या हुआ आपका? द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1, वन लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल passes through the focus of the another side. One is in the optical center, just put the draw arrows like this. That will be passes from here and they will meet at the infinity, and when they will meet, that will be the shape object image of the object is there. The image is real, inverted, highly magnified, and it will be formed at the infinity. And when the object is very closer to the center of optical center, तब क्या होगा? ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है. सिंपली आई कैन से दैट कि एंड द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज. यहाँ पे रखा तो वन लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन passes from the focal and another from the optical center. They will not meet there, and if we try to form that, they will meet at the behind of that ऑब्जेक्ट. ये आपका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पीछे बनी है, तो वी विल से दैट ए डैश और बी डैश, देखोगे साइज इसका बड़ा है और इसी वजह से जो इमेज बने दैट विल बी लार्जर इन द साइज, एंड ड्यू टू दैट इट विल बी यूज्ड इन द मैग्नीफाइड ग्लासेस. कि मैग्नीफाइड ग्लास में है, इफ आई विल शो द मैग्नीफाइड ग्लास एंड दीज आर द वर्ड्स विच आर रिटन. इफ वी यूज द मैग्नीफाइड ग्लास लाइक दिस, द ऑब्जेक्ट्स विल बिकम्स वेरी लार्जर इन द साइज. इसी तरह से जैसे इसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा है, तो आपका इस इमेज से आप देखोगे तो आपको आपकी इमेजेस क्या दिखाई देंगी? बड़ी दिखाई देंगी. जैसे दूर जाते जाओगे इमेजेस कम होती जाएगी. उसी तरह से मैग्नीफाइड ग्लास होते हैं, उसमें से आप जब देखने की कोशिश करते हो, व्हेन यू ट्राई टू सी फ्रॉम दैट, द इमेज लुक्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट, राइट. वो ऑब्जेक्ट से आपको क्या दिखाई देंगी? बड़ी दिखाई देंगी. कब? व्हेन object is very closer to optical center, right. So these are the different type of the images which are formed by the convex lens. Now we will discuss about the image formations by concave lens. तो अब किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कॉनकेव लेंस के में, कि कॉनकेव लेंस में कौन कौन सी इमेजेस आपकी बनती हैं, व्हाट टाइप ऑफ द इमेजेस विल बी फॉर्म देयर. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग अ कॉनकेव लेंस लाइक दिस, राइट. इफ आई विल ड्रॉ लाइक दिस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर. जो पॉइंट है ये क्या होगा? आपका ऑप्टिकल सेंटर. इसका फोकस इसी साइड होगा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा. इसका फोकस इस साइड होगा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा. तो ऑब्जेक्ट को आप किसी भी डिस्टेंस पे रख दो. एज आई टोल्ड यू दैट दिस लेंस इज योर डाइवर्जिंग इन द नेचर. If a line parallel to principal axis means the object is placed at the infinite distance. ऑब्जेक्ट को आपने कितने प्लेस पे कर दिया? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कर दिया. तो इट विल बी जस्ट लाइक दिस एंड इट विल बी जस्ट लाइक दिस. इफ आई ड्रॉ अ लाइन दैट विल passes थ्रू द फोकस, इफ आई विल ड्रॉ लाइक दिस, तो द इमेज विल बी ऑन फोकस. स्मॉल होगी और क्या होगी आपकी? स्मॉल भी कह सकते हैं, डिमिनिश कह सकते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट. अब आपको इससे तो पता नहीं चलेगा इरेक्ट पॉइंट साइज बनने. हम ऑब्जेक्ट की क्या कर देते हैं? पोजीशन को चेंज कर देते हैं. एक सेकंड, हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देंगे. आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट इज द टाइप ऑफ द इमेज विल बी फॉर्म्ड. यस, ये तो कब था? जब हमने इन्फिनिटी पे रखा. तो आपकी इमेज कहाँ पे बनी? ऑन द फोकस.
एंड देखो ये आपकी डाइवर्जिंग नेचर है, इसलिए यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुई और बाहर चली गई। और हमने इसको एक्सटेंड किया तो दे विल मीट एट द फोकस। इफ अगेन वी पुट ड्रॉ अ लाइन कॉनकेव लेंस लाइक दिस, this is f1, this is c1, f2 and this is c2. This is your optical center, right? If the object is placed beyond c, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, this is your a, this is your b, this is your m, this is your n, right? If a line parallel to principal axis, this line is parallel to principal axis, after refraction it will be just like this. Right? If I will continue, it will be passes through the focus. किस में से पास होगी? फोकस में से पास होगी। और लाइन विच इज पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, अब एक लाइन है जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होते हैं विदाउट रिफ्लेक्शन, इट विल बी पासिस। अब देखो वेयर द ऑब्जेक्ट मीट, जस्ट टेल मी वेयर द ऑब्जेक्ट मीट, दिस वन, ये ए डैश बी डैश। तो क्या होगा आपका इमेज? वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉलर साइज। स्मॉलर साइज को हम बोलेंगे डिमिनिश्ड। तो कॉन्वेक्स लेंस में तो आपकी सारी की सारी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी थी, लेकिन आपका जो कॉनकेव लेंस है उसमें सारी इमेजेस बनेंगी वो आपकी रियल वर्चुअल बनेंगी, इरेक्ट बनेंगी और डिमिनिश साइज की बनेंगी। जस्ट लाइक आई एम जस्ट गिविंग वन मोर एग्जांपल, इफ वी ड्रॉ वन मोर, और मैं एक बार और पोजीशन को चेंज करके देखती हूँ कि वेयर द ऑब्जेक्ट विल बी कीप। इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अगेन चेंज, व्हाट विल बी देयर? इज देयर एनी चेंज इन द पोजीशन ऑफ दैट और नॉट? दिस इज योर F2 and this is your C2, like this, right? If the object is placed beyond this one, F और C के बीच में रख लेते हैं, मैंने पोजीशन चेंज कर लिया। अब इसको मैंने कहा अलाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन it will like this, diverting in the nature. If I will continue like this, it will be like this, right? ऐसे दिखेगा। दूसरी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी वो एज इट इज जाएगी, राइट? अब ये देखो ऑब्जेक्ट कहाँ बनी? ए डैश बी डैश, ए और बी, राइट? तो आपने क्या देखा? हर बार आपकी इमेज क्या बन रही है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, राइट? तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द इमेजेस फॉर्म बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ द लेंसेज. Now we will discuss about the sign convention for spherical lens, right? Sign convention. For example, this is your convex lens. If I am just drawing like this, this is your O, F2, C2, F1 or C1, right? यू कीप द ऑब्जेक्ट ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. आपने इमेज यहाँ क्या रखा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखा. मान लो मैं कहूँ कि आई केप्ट द ऑब्जेक्ट ए एंड बी हेयर, दिस इज द डिस्टेंस, दैट इज योर यू. तो यू विल बी ऑलवेज नेगेटिव. यू विल बी ऑलवेज नेगेटिव इन बोथ concave and convex lens. Why it is negative? Because object is always placed in front of reflecting surface या लेंस के हम उसके सामने रखेंगे, जिसकी वजह से जो हमेशा यू क्या होगा आपका नेगेटिव रहेगा दोनों के साथ. अब देखो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, लेकिन इसकी फोकल लेंथ कहाँ है? इस साइड है, इस वाले की इस साइड है. तो F विल बी पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो पॉजिटिव होगा, तो F नेगेटिव किसके लिए होगा? फॉर कॉनकेव लेंस. अब कहोगे मैडम कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव कैसे हो गया? मैंने ये बोला, देखो इफ आई ड्रॉ लाइक दिस, ये O, ये F1 और ये आपका F2.
राइट। अब यही मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी, राइट, और यही मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, यही मेरा फोकस है, तो एफ क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन उसमें अपोजिट था तो इसलिए आपका एफ क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात आई वी की, तो वी विल बी पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड वी इज इक्वल टू नेगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस, राइट। वी विल डिस्कस कैसे होती है आपकी, जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं हम। ये हमारा है डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस। इफ आई पुट अ लाइक दिस ओ F1 C1 F2 और C2 लाइक दिस, राइट। अब मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, ये मैंने इसकी ये बनाई, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes थ्रू द फोकस लाइक दिस। इफ आई विल ड्रॉ arrow लाइक दिस एंड वन लाइन पासिंग थ्रू दैट, इट विल बी जस्ट लाइक दिस, ठीक है, ए डैश बी डैश, ए और बी। अब ये देखो ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है इस साइड पे, इमेज बनी है मेरी उस साइड पे, तो वी विल बी आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव, राइट। तो वी आपका क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा फॉर किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और सॉरी, इफ आई ड्रॉ फॉर अ कनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के लिए रखो, मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, चलो इसी को कर लेते हैं। ये आपका F हो गया और ये आपका क्या हो गया C हो गया, F2 और ये क्या हो गया आपका C2। ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी लाइक दिस बट इट विल बी पासेस थ्रू लाइक दिस। दूसरी ये ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेंगे हम लाइन को, तो इमेज विल बी हेयर ए डैश बी डैश। नो डाउट ये किससे पहले बनी है, ऑब्जेक्ट से पहले बनी है, तो वर्चुअल है, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है। लेकिन जिस साइड आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, जिस साइड आपका लेंस था, जिधर आपका ऑब्जेक्ट रखा था, तो उसी में आपका क्या बना है इमेज बने, तो वी विल बी नेगेटिव, राइट। तो वी विल बी नेगेटिव फॉर दीज टू केसेस, ओके। आगे हम लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन करेंगे, इट विल बी डिस्कस्ड टुमारो।